اگر کوئی پرابلم تو ساتھ میں کلیئر کرتے ہیں. کبھی کوئی ایسی چیز ہو, بات کسی کی بری لگی ہو تو آپ کلیئر کریں. ہاں فوراً میں تو کہتی ہوں فوراً پوچھ لینا چاہیے, بول دینا چاہیے, کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ گروپ میں آپ کی مس انڈرسٹینڈنگز بھی ہو سکتی ہیں. تو میں کہتی ہوں فوراً پوچھ لو, اگلے سے پوچھ لو اور ڈائریکٹ ہوئے ایک دو دفعہ تو ہم نیچرل ہے بہت. میں نے جو کرن کے بارے میں ڈسکور کیا جب میں پہلی بار ٹریول کری تھی, بہت ڈسپلنڈ ہے, بہت ڈسپلنڈ ہے ہر چیز میں, اس کو ہر چیز اپنی ڈسپلن میں چاہیے. اینڈ شی از ویری سمپل ان ہر اپروچ. کوئی یہ بھی نہیں کہ کوئی بہت مشکل انسان ہے, ویری سمپل ان ہر اپروچ. جو آپ اس کو بتاؤ گے کرن تمہیں آج سونا ہے, وہ وہی سو جائے گی, سیدھی سو جائے گی. ہاں, اور نہ کھانے میں کچھ نہ کچھ, بس باتھ روم سوکھا ملنا چاہیے. ہاں باتھ روم میں پانی نہ, لیکن ادروائز شی از بہت ہی آرگنائزڈ. میں نازیہ کے بارے میں بتاتی ہوں. نازیہ ہماری ٹور گائیڈ ہے, مطلب اس بندی کو ہر جگہ پتا ہوتی ہے, ہر چھوٹی گلی پتا ہوتی ہے, کہاں پہ کیا ہے, یہاں سے نہیں پہنچ سکتے تو ہم یہاں سے پہنچ سکتے. شی نوز ناردرن ایریاز. یہ اس کا مطلب یہ راستے بھی ان کو اچھی یاد رہتے ہوں گے. کمال کی میموری ہے, کمال کی میموری ہے. اینڈ دوسرا, کسی کو سینس کرنا, کسی کو جج کرنا, یہ چیز صحیح ہے نہیں, یہ غلط کہہ رہا ہے, یہ کوئی اور. شی از ان ایکسپرٹ. اچھا میں ایک واقعہ سناتی ہوں اسی ایک منٹ پہلے میں سب کو بتا تو دوں نا, سب کو بتا دوں. مجھے وہ بتانا جو ہمارے ساتھ آ جائیں گے. تو یہ شی از این ایکسلنٹ ٹور گائیڈ. اور اگر آپ اس سے کوئی مشورہ لینے چاہیں گے, امیزنگ, کوئی مطلب سیلف لیس اپروچ, اور بالکل صحیح گائیڈ کرے گی. دیٹس the بیسٹ پارٹ اباؤٹ ہر. امبر کنٹیجیس ہے, امبر کی انرجی. آپ رات کے 2 بجے کہیں گے امبر ذرا باہر گھوم, ہاں چلو. 4 بجے نیند آنکھ کھلی, امبر یار دل چاہ رہا ہے تھوڑی سی ہوا, ہاں چلو چلو چلو. شی از مطلب جب آپ لوگ ساتھ میں ڈرائیو کون کرتا ہے؟ ڈرائیور کراچی میں جانا ہوتا ہے, ڈریم ورلڈ جا رہے ہیں, منورا جا رہے ہیں, تو شی از the one. خوشی خوشی ہم لوگ سٹی سے تھوڑا باہر بھی جا رہے ہیں, کو آپ کسی وقت بھی کچھ بھی, شی از آلویز ریڈی. میں دیکھتی ہوں بندی تھکتی نہیں ہے, یہ پہاڑ پہ چڑھ کے چلی جائے گی, اور سب کچھ کر لے گی اور سب کچھ مینج کرے گی, اور تھکے گی نہیں رات کو. ہم سب ایسے گرے ہوئے ہوں گے, میں کہتی ہوں ٹانگوں میں درد. میں ساتھ ساتھ رہتی ہوں. مجھے میں یہی کہا, ایک انرجیٹک بندہ مجھے ملا, وہ امبر, کہ مجھے چلے کوئی رنگ نہیں تھے, نہیں تم لوگ پہاڑ ایسے نہیں چڑھتے جیسے یہ پھر نہیں, اب ہم واپس جا رہے ہیں, لیکن چلو آپ مجھے کہیں گے رات 1 بجے چلو کہ کافی پینے چلتے ہیں, یا کوئی گیسٹ آ رہے ہیں, میں اتنی میں نو نہیں کرتی, بس صبح آفس آنا ہے, میں ٹریولنگ میں نو کہاں کرتی. ہاں ٹریولنگ میں نو نہیں, لیکن کافی وافی کے لیے کبھی کبھی. کیا ہوا تھا سوال موٹر وے پہ بھائی؟ ہاں موٹر وے پہ یہ ہوا تھا کہ ایک تو جب بھی کوئی ڈرائیور ہائر کرے نا, تو 1 منٹ میں تو واقعہ سنا نہیں سکیں گے, یا سنا سکتی ہیں؟ مشکل ہو جائے گا. ان شارٹ سنا دیتی ہوں کہ موٹر وے پہ جب بھی آپ ٹریول کریں تو جو بھی آپ ڈرائیور ہائر کریں تو کسی نہ کسی ٹریول ایجنٹ کے ذریعے کریں. بس اتفاق سے ایک عجیب سا ڈرائیور کر لیا تھا. میں ان کی بات کو آگے کنٹینیو کروں گی, لیکن یہ بات مجھے ان سے نا ان سے لینی, ایڈوائسز بھی لینی ہے. بہت سارے لوگ جو دیکھ رہے ہیں, کیونکہ ملک سے باہر میں نے اکیلے سولو ٹرپس بہت کی ہیں, اپنی فرینڈس کے ساتھ بہت کی ہیں, لیکن پاکستان میں لڑکیاں سولو ٹرپ کرتے ہوئے رہتی, لیکن انہوں نے کیے ہوئے ہیں. تو ان سے ہم کافی گائیڈنس بھی لیں گے, اگر کرنا چاہتے تو کیا کرنا چاہیے. واقعہ بھی سنیں گے, پیرانارمل ایکٹیویٹیز بھی بتھیری کے ساتھ انہوں نے مجھے بتایا, اور آپ کو پتا ہے سننے کا کتنا شوق ہے. تو چھوٹی سی بریک لے رہی ہوں, کہیں مزہ آئے گا, بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور بریک کے بعد میں نے سوچا کہ ذرا میں ان سے پوچھوں بھی, کیونکہ اتنا ٹریول کرتی ہیں, یہ تو مجھے ہمیں ٹپس بھی دیں گے اگر لڑکیاں اکیلے ٹریول کرنا چاہتی ہیں, کن کن چیزوں کا خیال کریں, کیا کچھ کرنا ہے, کون سی جگہ جو ہم نے ابھی تک ایکسپلور نہیں کی وہ ایکسپلور کرنی چاہیے, اور کیا کچھ ایسے واقعات ان کے ساتھ ہوئے ہیں جن سے ان کو ڈر بھی لگا, اور جن سے میں تو ابھی سے یہ دل میں سوچ کے کہ مجھے ڈر لگے گا, مجھے خوشی ہو رہی ہے.
कुछ ऐसे लोग भी होते हैं ना मुझे जैसे। अच्छा आप सवाद का बता दीजिए। मैं बताई थी सर कहा ना कि नाजिया को फौरन से फील हो जाता है। सवाद से हम वापसी पर आ रहे थे, द ड्राइवर वाज ऑल फाइन पूरे टाइम पर, लेकिन पता नहीं वापसी पे ना वो बार बार किसी से फोन पे बात कर रहा था। अच्छा मैं थोड़ा सा ना वो हो रही थी, कॉन्शियस हो रही थी कि कुछ गड़बड़ है, पता नहीं वो होता है ना कि आपको फौरन से फील आने लगता है कि यहाँ पे कोई गड़बड़ है। तो मैं थोड़ी स्टिफ हो गई, खैर मैं आगे ही बैठती हूँ, मेरी आदत है। तो जाते जाते ना क्या हुआ कि एक पार्ट ऐसा आता है वहां पर कि जहाँ पे सिग्नल्स नहीं आते, ठीक है, थे ही नहीं कोई भी सिग्नल्स। अच्छा मोटरवे का जो पुलिस है वो हर 10 मिनट बाद वहां पर आती है ना, वो पोर्शन ऐसा था, वो पार्ट ऐसा था जहाँ पर कोई था नहीं आगे पीछे। चलते 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 गाड़ी रुक गई। अब जैसे गाड़ी रुकी, बाजी गाड़ी खराब हो गई है, प्रॉब्लम हो रहा है, वो उतर कर बाहर गया है और मुझे एकदम कुछ क्लिक हुआ। मैं गाड़ी में बैठी, शुक्र उसने वो लगाया हुआ था, चाबी लगी हुई थी, इस तरफ सीट पे बैठी और मैंने कहा तुम आओ नहीं आओ, तुम्हारे ऊपर से मैं गाड़ी ले जाऊंगी, लेकिन मैं गाड़ी स्टार्ट करके जा रही हूँ। गाड़ी खराब है, आई डोंट केयर, 10 मिनट बाद यहाँ पे मोटरवे पुलिस आ जाएगी और सिग्नल्स खुल जाएंगे, मुझे यहाँ से निकलना है। नहीं आपने ड्राइव करें। अच्छा मैं 2 मिनट में ठीक करता हूँ गाड़ी। उसने पता नहीं क्या किया, उसने मेरे ऑयल जो है ना लीक कर दिया वहाँ पर। उतनी देर में हम लोग, वो गाड़ी में खुद बैठा, स्टार्ट भी होगी गाड़ी, फिर वो हमें 10 मिनट आगे लेकर गया जहाँ पे मोटरवे पुलिस थी, हमने गाड़ी रोकी वहाँ पर। कितनी और इस वक्त आपके साथ कौन कौन था? आप मैं थी, बुशरा थी, एक हमारी दोस्त अमेरिका से आई हुई थी और एक हमारी एक और दोस्त थी, वो हमारी एक पुरानी दोस्त साथ में ना, 4 लड़कियां थी हम लोग। तो उस वक्त जो है ना, जो डिसीजन जो लिया था ना, बस वो मुझे बुशरा ये कहती नाजिया वो तुम्हारा डिसीजन था, कहती हम लोग वरना पैनिक कर गए थे। तो इस पे आपको पैनिक नहीं करना होता, आपको फौरन से आपको जो है ना अपने आप को सेव करना है, कहीं पर अलर्ट रहना, जब आप किसी और पर्सन के साथ हैं आपके ग्रुप में। तो बस वहाँ पर फिर क्या हुआ, वो पुलिस वाले आए तो उन्होंने चेक किया, उन्होंने गाड़ी मैकेनिक बुलाया तो उन्होंने कहा कि ऑयल खत्म है। अब मैंने कहा एक बंदा ऑयल कैसे खत्म हो सकता है? तो आई रियलाइज कि इसने वहां पर जो गाड़ी इसने खोली, इसने ऑयल वहां से फेंक दिया होगा ताकि लगे कि गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है। तो वो जो हमने गाड़ी वाला हायर किया था ना, वो किसी एक बंदे से किया था कि यार आप हायर करवा दो। तो मैं कहती हूँ हमेशा कंपनी से आप करवा। अब मैं सिर्फ उसके बगैर कंपनी मैं यहाँ पे मदिया ऐड करूंगी। एक चीज़ मेरे साथ हुई थी और इसी तरह की मुझे भी एक इंट्यूशन हुई थी। मैं खाली रोड पे, समझो अप्रोक्सीमेटली बलूचिस्तान से मैं वापस सिंध में एंटर हो रही थी, कंप्लीटली खाली, मतलब दोनों तरफ में सिर्फ खाली मैदान थे और मैं आराम से चलती आ रही थी। दूर मैंने देखा एक कट है और उस पर ना एक पुरानी सी पिकअप टाइप गाड़ी खड़ी हुई है। तो मैंने कहा पता नहीं क्यों खड़े होगा, किसी का वेट, यहाँ तो कोई है ही नहीं। जैसे ही मैं उसके पास स्पीड से गुजरी, उसने मेरी गाड़ी में ढस करके मारा पीछे। अच्छा मैंने आगे जाके गाड़ी रोकी, मैंने कहा अच्छा मैं उतर रही हूँ पूरे गुस्से में। उतरते उतरते मुझे हुआ नहीं उतरना नहीं। साथ मुझे बताएं, अकेली थी गाड़ी के साथ बैठा हुआ? मेरी अम्मा थी मेरे साथ बैठी हुई। और आप किधर से? और मेरी अम्मा मुझे कह रही थी, ये आप किधर से आ रही थी ट्रैवल करके? ये मैं अपनी अम्मा को एक हाउसिंग स्कीम दिखा के ला रही थी। खैर और कोई बंदा नहीं मतलब कर फिर क्या हुआ, मेरी अम्मा कह रही देखो उससे पूछो उसने किया कैसे ऐसे। अच्छा मैं उतर भी रही हूँ, मैंने बेल्ट मतलब वो कर लिया और मैंने कहा नहीं मामा, मैंने वापस बेल्ट लगाई और मैं फुल स्पीड में भागी। तो कहती क्यों? मैंने कहा समथिंग समझ में आ गया। हाँ मैंने कहा ये इसने मारा है, मैं यहाँ रुकूंगी, ये हमको या तो किडनैप करेगा, ये गाड़ी छीनेगा या कुछ। अच्छा नहीं हुआ भी, सुनो हुआ क्या आगे जाके। मैं जब M9 पे वापस आई, वहाँ पे पेट्रोल पंप पे मैं रुकी तो उस पेट्रोल पंप वाले मुझे कहा आपकी गाड़ी पीछे से मारी हुई है किसी ने। मैंने कहा अभी भी मारी। कहता अब रुकी तो नहीं? मैंने कहा नहीं रुकी। बहुत अच्छा किया, यहाँ पे यही होता है। मैं आपको बताऊं, अच्छा मैं क्योंकि लाहौर से हूँ तो मैं इस्लामाबाद, मेरी बेस्ट फ्रेंड वहाँ रहती थी जब कुछ अर्से के लिए, तो मैं खुद ड्राइव करके और मैं अकेली जाती थी, मैं अकेली ड्राइव करते हुए जाती थी और इस्लामाबाद लाहौर से चली जाती थी। तो मुझे भी बहुत से लोगों ने कहा था कि कभी ऐसा हो गया तुम किसी ने अंडे मारे हो और रुकना नहीं कहीं पे भी। और मेरे भाई ने जब मैंने शुरू में गाड़ी चलाना सीखी थी, आई वाज वेरी यंग, तो उसने कहा था कि कभी कोई अगर खैर टेलीविजन तो खौफनाक बात बता रही, मेरा भाई कहेगा क्या बात बता रही, उसने कहा था कभी कोई बाइक वाला तुम्हारे पीछे से कोई पड़े ना, तुम्हारे पीछे पड़े, कहते हैं उन पे गाड़ी चढ़ा। मैंने चलाई है, कहते इससे तुम्हें और कहते बाद में देख लेंगे कोई अगर तुम्हें करा हो, कोई तुम्हें तंग करा हो। मेरे साथ ये सेम एग्जैक्टली मदिया हुआ था और हम सब इस चीज से गए। नादिया खान के घर पे एक इवेंट था और हम सब उन्हीं के घर जा रहे थे। तो ये जो अटेंशन जो एंटीनाज होते हैं ना, वो यही थे कि मेरे पीछे एक बाइक लगी। तो अब वो काफी मैंने उसको पहले डॉज किया। मुझे लगा कि अक्सर खवातीन जो है ना वो वाकई मल्टीटास्किंग वो देख रही होती हैं, देखती हैं। तो मुझे लगा कि अक्सर कुछ लफंगे
लड़के होते हैं जो आपको ज़रा छेड़म छाड़ी करते हैं, तो ऐसे ही, और कपड़े भी नॉर्मल जो है वो पूरे गला बंद, शर्ट पूरी, वो चाइनीज कॉलर पहना हुआ था, फर्क नहीं पड़ता, तो उनको था कि बस एक जिंदा इंसान है बस, तो अकेली है। अच्छा, मैं जब वो जा रही थी तो मुझे काफी एक जगह लगा कि मैंने इसको डॉच किया थोड़ी देर के बाद वो फिर आया, तो मुझे लगा कि अगर मैं ये 2 किलोमीटर से आगे निकल गई ना अपने घर के रेडियस से, तो ये अच्छा बार बार घूम के ना मेरी गाड़ी के साथ मोबाइल की तस्वीर ले रहा है और बात कर रहा है, तो मुझे लगा ये यकीनन वारदात है। तो मुझे आज भी याद है कि मैंने अपने हस्बैंड को कॉल की और मैंने कहा उसामा, मैं यहाँ फलानी जगह पे हूँ और आप जो है ना बस फौरन 5 मिनट आप पहुंच जाएंगे और मैं इस बंदे को मार रही हूँ। फिर मैंने पीछे देखा कि कोई और फैमिली के साथ कोई बाइक पे तो नहीं है कि बच्चे हैं, बीवी हैं, या मैं कुछ करूँ, और जब मैंने देखा कि कोई भी नहीं है तो मैंने गाड़ी लेकर उसको लिटरली मारा, और जब वो गया तो बाकायदा बाद में जब पुलिस आई और जब मेरा हस्बैंड भी आया, मेरा ब्रदर इन लॉ भी जब पहुंचा, तो कुछ पुलिस वालों ने बोला कि ये आजकल ये वारदात हो रही है कि आगे जाके क्योंकि आपको गड्ढे मिलते हैं तो आपकी गाड़ी स्लो होती है और वहीं वो आपको ग्रैब करते हैं। आपको पता है, तो ये भी एक बड़ी वजह है जो कराची में जो आप रोड आप स्ट्रीट क्राइम्स देखते हैं, उसकी वजह भी है क्योंकि जैसे गड्ढे जैसे आएंगे, आप गाड़ी को हल्का स्पीड ऐसे करेंगे तो लोग निकल भी खड़े होंगे और ये भी। अच्छा, 2016 की बात है, न्यूप्लेक्स से वापस आते हुए, आपको पता है फेज 8 की वो गलियां जहाँ पे लाइट भी नहीं चल रही होती, तो मैं एक मूवी का प्रीमियर करके आ रही थी, अब लोग मूवी देख रहे थे, मैंने रात के टाइम से अभी भी नहीं, उस खाली रोड पे मैं जा रही थी। अच्छा, मैंने देखा कि एक बाइक मेरे सामने है, वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो होती जा रही, कोई गाड़ी और नहीं है, सिर्फ वो एक बाइक है, आहिस्ता आहिस्ता स्लो होती जा रही है। फिर मैंने बैक मिरर से देखा एक बाइक मेरे पीछे है, मैंने कहा बेटा ये तो सीन है, ठीक है। अब क्या हुआ, मैं जा रही हूँ, उसने आगे बिल्कुल मेरी गाड़ी के आगे ना बाइक लगा दी और उसने कहा नीचे उतरो। और मैंने उसको देखा और फिर मैंने पीछे वाले को देखा तो पीछे वाला भी आ रहा था, मैंने हल्की सी रिवर्स की और मैंने उसकी बाइक पे मारी और मैं ऑल द वे गाड़ी रिवर्स करती हुई गई, पीछे बाइक वाला साइड पे हो गया क्योंकि मैं इतनी स्पीड में पीछे हो रही थी और मैं वहां से निकल के भागी। तो ये करना पड़ता है। एक दफा मैं और राफिया भी आ रहे थे, तो याद है? यस, हम दोनों भी आ रहे थे। मैं समिया को घर ड्रॉप कर रही थी, वो लड़के हमारे पीछे पड़ गए। फिर राफिया ने मुझे बोला कि समिया हमारे, मैंने कहा तुम इतनी तेज गाड़ी क्यों आगे हुई, हमारे पीछे लड़के लग गए। तो फिर मैंने उसामा को कॉल किया, उसामा गन वन लेके बाहर आके मतलब है तुम भाई खड़े हुए किधर। अच्छा, ये बात और एक और चीज, एक और साथ में क्योंकि डिस्कशन चल रही थी, साथ में टिप भी देते चले। मैं खुद भी जब अपने कभी घर से किसी छोटे भी काम के लिए चली जाऊँ, अगर वैसे मैं अकेली नहीं अब निकलती, पहले जाहिर से पहले अपने बेटे से पहले मैं खुद बहुत फन्ने खान बनी होती थी, लेकिन अब माँ बनने के बाद ना थोड़ा सा कंट्रोल आ गया, डर भी जाते हैं अपने लिए, नहीं आपको जो पीछे बच्चा घर छोड़ कर ना उसकी टेंशन होती है। तो मैं अपनी मियाँ के साथ शादी की बाद भी मैं अगर छोटी सी चीज़ भी लेने की जाती ना रात में, मुझे रात के टाइम से खौफ आता है ड्राइव करते हुए, तो मैं अपने मियाँ को ना अपनी लाइव लोकेशन भेजती हूँ। अच्छा, तो मैं फिर मैंने कहा फैसल प्लीज तुम देखते रहना, मैंने कहा मैंने इधर जाना है, अगर मैं किसी ऐसी जगह रुकी हूँ तो मैं लगे ना ज्यादा देर रुकी हुई तो मुझे कॉल करके देखना। तो ये मैं जरूर करती हूँ, मैंने उसके साथ लाइव लोकेशन में। अच्छी बात, मुझे खौफ है, मुझे एक खौफ है जिसकी वजह से मैं करती हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी एक बार मेरी फ्रेंड आई हुई दुबई से, उसने अपना नया एक बड़ा जबरदस्त महंगा सा फोन निकाला और हम लोग पंजाब चौरंगी पे वहाँ पे एक बड़ा अच्छा बोहरी कुजीन एक 5 कोर्स था, वहां से खाते हुए आ रही हूँ इसको, वो रात के 12:30 बजे, जी 12:30 बजे का वो टाइम था। तो पंजाब चौरंगी पे मुझे बाइक वाले ने, मेरी फ्रेंड वाली साइड से, वो तो बेचारी दुबई से आई हुई थी और उसने सिर्फ सुना ही हुआ, तो मुझे कहती मदिया मैंने कराची के बारे में बड़ा सुना हुआ। मैंने कहा कुछ नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है, तुम्हारी बहन इतने अरसे से अकेली रह रही है, अल्लाह का परवरदिगार का शुक्र है। इतनी देर में एक बाइक वाले ने आके ठक 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 करके उसकी शीशा किया, उसने ना फोन अपना पकड़ा हुआ था, तो वो डर गई और डर मैं भी गई। तो उसने ना हाथ में से शो किया जैसे उसके पास गन हो, तो उसने मुझे गुस्से से इसने शीशे को मारा है और ये सिग्नल पे खड़ी हुई रात के 12:30 बजे, और उसके बाद मुझे लगा उसने ऊंची आवाज में गाली दी। अच्छा, मुझे और कोई बात याद नहीं आई, मुझे ना मेरे भाई की बात, मैंने गाड़ी हल्की सी पीछे करके मैंने उसको सुनाई, मैंने ना मुंह से मैं म्यूट, मैंने पीछे करके मैंने उसकी साइड पे उसको गाड़ी मारी और वो भाग गया वहां से। मैं जिस तरह मेरी पूरी टांगे कांपती रही, यकीन माने पूरा एक दिन खौफ से। नहीं होता, देखो विद इन कराची, लेकिन बात यह है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है। अच्छा, तो कराची की कुछ है ना, विद इन कराची तो देखो किरण के साथ भी है, मेरे साथ भी है, ये तो होता ही है थोड़ा बहुत। तो मुझे देखिए हमारा सीन ये माशाल्लाह से देखे ना, ये अलार्म बजे, इतने बजे सो के उठती है, बच्चों को सुबह स्कूल कौन भेजता है, जाने का टाइम, जाने का टाइम है ऑफिस, ये जाने का टाइम, ये कौन से बच्चे जिनके 10:30 बजे छुट्टी हो जाती है, ऑफिस में जाने का टाइम। अच्छा, मुझे वैसे ये बताइए, तो हमारे मसला ये कि आजकल आपको जिन्नात से डर नहीं लगता, आपको इंसानों से डर लगता है, और ऐसे वाकयात भी हमारे साथ। लेकिन मैं एक बात बताऊं मवदिया, आपके शो पे कि कुछ लड़के जो वारदात करने नहीं आते वो मस्ती करते हैं,
अक्सर मजे लेते हैं कि अभी लड़के पता कैसे ये चलेगा? बस नहीं, ये करने होता आए है क्लिफ्टन ब्रिज के ऊपर अक्सर लड़के जो है ना वो गाड़ी स्लो करके आपको तकलीफ देते हैं, तो ये नहीं करें, ना करें तो बेहतर ये नहीं करें, क्योंकि आप लोग अच्छी फैमिली समिया ने कह दिया, उन्होंने सुन लिया। मैं भी उनके साथ बहुत मस्ती करती कहने हूँ। से क्या आगे बस जाके कहने मैं नहीं साथ करना drop कर चाहिए। देती कोई हूँ। नहीं मैं उनके क्योंकि साथ आपको गाड़ी नहीं में पता एक वक्त में एक बोले नहीं, मैं बताऊं, आपको नहीं पता कि कौन आपके साथ बैठा है और कौन आप ही को गलती से वारदात का शिकार बना दे। ये मस्ती होती है, क्योंकि ये अक्सर मैंने देखा है कि लड़कियों के पास भी वेपन्स होते हैं, जो सेफ्टी वेपन्स होते हैं वो चला देती हैं। तो आप लोग ये मत करें, मतलब अभी बात करें तो इसलिए एक पब्लिक सर्विस मैसेज है बता रही कि हैं। आप ये नहीं करें। आप अच्छी फैमिली से, आपको मजा आता है तंग करने में, लेकिन हमारे साथ बच्चे होते हैं ना, तो हम बच्चों के सेफ्टी में ये नहीं देखेंगे आगे कौन है, हाँ ये बात तो हम सही है। मार सकते अच्छा हैं। मुझे बताएं